how articleship at Prachya looks like. So you all must be very excited that, okay, Prachya is into various vertical, but what about articleship exposure? So when I talk about articleship exposure, we are very different from the traditional audit or tax focused firms. We provide exposure in live financial transactions. We provide exposure to debt and investment transactions. We provide exposure in fundraising and deal advisory, in corporate fund analysis, research, finance modeling. So it is not just the compliance work. It is not just the tax audit that you will learn here, but you will learn that how finance actually operate in the real world. So the main purpose is to get exposure in the finance field. Now, let's hear directly from those who have lived this journey, right? We have our three current CA articles with us. So today they are going to share what they have learned. So it's been 1 year they are associated with us. So they will share their experience, that how the work has shaped their understanding of finance and what their articleship experience at Prachya looks like. So I would request Karan to take this further. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. First of all, congratulations to everyone for clearing CA Inter exams. My name is Karan Pandey, and I am a CA article currently working at Prachya. I joined Prachya a year ago as part of their articleship and industrial training program, and since then, it truly has been a very transformative experience for me. So today, I will be sharing my interview experience at Prachya. So after I cleared my CA Inter exams, I applied for articleship at Prachya, and I was one of the lucky candidates who got a call from HR for the talent drive. So when I came to talent drive experience, I will uh, it Prachya team was very welcoming at that time. Talent drive began with a KYC round, know your company round, where they were introduced us with the company's vision, mission, what work company does, what are their values, culture. So it helped all the candidates to get aligned. Then we had a mock round where they tested us on our financial understanding, financial knowledge, and then we had a team interaction round where we were introduced to Prachya team, where they tried to understand us on individual level and our personality. So it was a very different experience. And then we had a committee round where we had to present. We were given a topic to present to the committee, and questions were asked by the committee, and we had to answer them. And at final, there was a CEO round where we had a one-on-one interaction with the director, CEO of the company, with Girish sir. So overall experience of Talent Drive was very amazing, very dynamic, as compared to other firms where I had given interviews. बाकी फॉर्म्स में क्या होता है कि हमें सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे टेस्ट किया जाता है, बट प्रचय में आई थॉट दैट दे टेस्टेड अस ऑन वेरियस फैक्टर्स. So I thought it was a very holistic approach by the Prachya team, and the hospitality of Prachya was very amazing. Prachya की जो टीम थी, at every stage they were very supportive and approachable, very dynamically, very well structured. And after selection, we had a 1 month of training induction program, where हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट फ्रॉम स्क्रैच बेसिक से सिखाया गया, एंड वेरियस लर्निंग वीडियोस दिखाई गई थी विच वर रिलेटेड टू वर्क. तो जो हमारा फाउंडेशन था वो इतना स्ट्रांगली बिल्ड हो गया कि हम बहुत स्मूथली सेटल इन हो गए थे काम में. And after the best part of induction was, at every Friday they used to help us, show us movies related to finance. तो उससे हमें वेरियस फाइनेंस के कंसेप्ट सीखने को मिले. सो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड was made easy by Prachya. So I think it's a golden opportunity for everyone to start their career in finance. And ऐसे rarely ऐसे opportunities आते हैं मार्केट में. So I think you should grab it. And now I will call Yash, who will be sharing about the exposure and learning opportunities at Prachya. So thank you. Yes, good morning everyone. Hope you are all doing well. I am Yash Patil and have been with Prachya Group for about a year now, working as a credit analyst. I am doing my CA articleship here and I am really excited to share my experience with you all today.
So when I first started my articleship, I will be honest, entering into corporate world was a bit overwhelming. But as said by Karan, our onboarding experience was very smooth. One thing that stands out is that in the industry, most articleship trainees choose traditional paths of auditing and taxation. It's the norm, but I was fortunate to step into the finance domain early on, and let me tell you, it's a whole different world. Here, I have had the opportunity to understand the real power of money management and how it drives business growth. When you are analyzing the loans and assessing the financial health, you are truly get to see how strategic financial decisions can transform company's trajectory. A big part of my role is analyzing loan proposals, which involves lot of credit analysis, cash flow analysis, sensitivity analysis, and many more things. All those things which we heard about in textbooks. But what's exciting is that it's not just theory, we apply it. Like, for example, the ratio analysis we learn in financial management. I used to analyze the financial statements of borrower companies. Seeing those concepts in action, real world scenarios, has really brought everything to life. Now, in typical CA articleship, a lot of the focus is on drafting financial statements. But here at Prache, I'm actually analyzing the financial health of borrower entities. It's such a rare and valuable experience because you don't often get to dive into the finance side of things so early in your career. It's been an eye opener, and it's one of the parts of my job I really enjoy. Another thing I have really appreciated here is the exposure to different departments. Even though I am mainly in credit, I have the opportunity to learn from other teams like legal, compliance, accounts, and we have these great learning sessions every Saturday where we discuss about industry updates, ways we can improve. This cross-department exposure has been incredibly valuable. And of course, the support from the team has been amazing. When I first started my articleship, I made plenty of mistakes and asked what I thought was silly doubts. But everyone here has been super patient, which made a huge difference in how quickly I have been able to learn. Working on commercial loans, managing large sums of money has definitely given me more confidence. But it's not just about numbers. One of the coolest things I have got to be the part of here was the IP of bonds. Getting involved in that process and contributing to it has been such a unique learning experience. To wrap it up, Prache has given me a rare and incredible opportunity to work in the finance domain at such a young age. Exposure, the hands-on experience, and the culture here have been fantastic. If you are looking to learn in a field that's not just about auditing and taxation, but about making real, impactful financial decisions, Prache is definitely the place to be. I am going to pass it on to Ria now, who will talk about work culture here. Thanks for listening. Yeah, so hi everyone, I'm Riya Goswami and I'm currently doing my articleship here. So today I'll be talking about something that truly makes Prache special and that is our culture. So जब मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ लाइक उनसे बात करती हूँ जो ट्रेडिशनल आर्टिकलशिप कर रहे हैं ऑडिट एंड टैक्सेशन फर्म्स में तो उनसे अक्सर ये सुनने मिलता है कि यार सेकंड शिफ्ट चल रही है मैनेजर अच्छा नहीं है या फिर काम बहुत है बट ऑनेस्टली एट प्रचे इट्स अ completely different world. Yes, we work hard, but we also have a lot of fun while doing it. So let me start with how we celebrate our festivals because trust me, it is something you don't want to miss. So हर एक फेस्टिवल फुल ऑफ सेलिब्रेशन के साथ होता है बीट दिवाली होली एंड इवन रीजनल वंस जैसे कि गणेश चतुर्थी. तो मैं खुद हरियाणा से हूँ एंड ऑनेस्टली दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस व्हाट गणेश चतुर्थी इज रियली लाइक. एंड जो डेकोरेशंस थे एनर्जी थी द प्रेयर्स इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. And that's the kind of cultural inclusivity that we have here, where you get to learn, celebrate, and connect beyond your own background. So sometimes we even also do desk decoration competition. Sometimes हम quiz organize करते हैं, speech and debate sessions रखते हैं, so that आपका communication skill भी बढ़े, उस area में भी आप आगे बढ़ो, and हर कोई company में participate भी करता है. So the whole office feels alive, and it genuinely gives that sense of belonging. एंड देन एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे हमारा लर्निंग एंड एक नॉलेज सेशन होता है जो कि लर्निंग कमेटी कंडक्ट करती है एंड दीज लर्निंग सेशंस आर एक्चुअली फन. So they are interactive, filled with real world examples, and they help you grow both technically as well as professionally. So, and even personally. So, one of the most special things that we have here is our town halls. So, on some Saturdays, we sit down with our CEO, Mr. Girish Lakhotia sir, for an open brainstorming session. And it's such a great space to share ideas, ask questions, and learn directly from him.
एंड काफी आर्टिकल ट्रेनीज को ऐसा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, ऐसा एक्सेस, ऐसा मेंटोरशिप एंड ऐसा नहीं मिलता, एंड दैट इज समथिंग दैट वी एज एन आर्टिकल ट्रूली वैल्यू हियर. And that is such a great space to share your ideas, ask questions, and then learn directly from him. So now I am personally part of the engagement committee, and hamara job is simply to make sure that everyone is having fun while working. So हम trekking trips, movie days, indoor games, birthday celebrations ये सब organize करते हैं. And here's something that you will love to learn, that जब जैसे करण ने आपको पहले बताया कि you'll have a 1 month induction period. So उस 1 month induction period में you actually get to watch finance based movies with the whole team. And yes, popcorns होंगे, treats होगी, movies होंगी जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे about the world of finance. And एक बहुत ही अच्छा चीज है, लाइक यू गेट टू लर्न विद एंटरटेनमेंट. इवन अस जब हम लोग एज एन आर्टिकल ज्वाइन हुए थे तो हम लोगों को भी वो चीज देखने मिला. सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि हाँ, इंडक्शन के साथ वी आर गेटिंग टू इवन वॉच फाइनेंस बेस्ड मूवीज, एंड फाइनेंस को हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक लर्न कर रहे हैं. So it was very refreshing for us. And apart from that, every 6 months, स्टेकेशन भी प्लान होता है. 1 or 2 days का स्टेकेशन होता है. इट इज अ गेटवे टू रिलैक्स, अनवाइंड एंड बॉन्ड विद पीपल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. So it's always full of laughter, fun games, amazing memories. And of course, at the end of every quarter, हमारी एक award ceremony होती है where achievements are celebrated, and of course, hard work is recognized because at Prache, appreciation truly matters. So yes, when I say that culture here is different, I actually mean it. आपका टिपिकल सीए फॉर्म एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, बहुत ही अलग होगा. बहुत ही लोगों से अब जब आप कनेक्ट करोगे बाकी के लोगों से, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ डिफरेंटली यू आर ट्रीटेड हियर फ्रॉम द अदर फर्म्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे अच्छी बात कि आपको जस्ट बहुत सी चीजें सीखने मिल रही है. लाइक फाइनेंस, फाइनेंस इज समथिंग जहाँ पे आप बहुत ही यंग एज में आप एंटर कर जाओगे, एंड यू विल एक्चुअली गेट टू लिव इट. You will grow, you will celebrate, and you will become a part of a family that helps you become your best self, both personally as well as professionally. So this is something that I feel like that makes Prache truly special. And now, to take you deeper into how unique this journey unfolds, I'd like to hand over to Anuradha ma'am, and thank you. Thank you, all three of you. You have shared an amazing experiences about you. Now, before diving into the main discussion or the main part of this webinar, I would like to introduce to someone very special. And I think you will genuinely relate this to your journey. You'll be glad to know that I am about to introduce Mr. Girish Lakhotia sir, who is a chartered accountant, just like many of you aspire to be. He has walked the exact same path. He did his articleship, worked in a job, started his own CA practice, taught CA students, moved into consultancy, stepped into entrepreneurship, and today he runs multiple ventures. Right? So, all of you are excited? Okay. So, please feel free to write your queries in the question box, and I'm sure that when he will speak to you, you will be able to relate it, and where exactly you are. He was there at some point of time in his life, and he has built the career in finance. So let's get started. I would request Giri sir to take this forward. Hi guys, good morning. I hope I'm audible. If someone can reply in the chat box, so I can continue. Am I audible? Can you see me? Yes. So first of all, guys, apologize. I'm intruding your Sunday. I know you must be relaxing at home and सवेरे सवेरे एक वेबिनार अटेंड करना पड़ रहा है. सीए की लाइफ है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती है. But still, I welcome you. And as Anuradha was saying that I'm also a chartered accountant. I also did my articleship, and then I pivoted my career into finance. So exactly, I have been where you are right now. I started my articleship in 2005. I did my articleship from a local CA firm in Pune, Khandelwal Jain. And in the final year, I decided to go for industrial training. I did my industrial training from Citibank, Mumbai, BKC. I was in corporate banking as a financial analyst. So that's how the career started. I'm basically from Nagpur. I did my first 2 levels in Nagpur. My education was for the first 2 levels was in Nagpur, and then I came to Pune in 2005.
I worked at City during industrial training. I was good in my job. I was given a job offer when I completed my CA. I worked there for a year. एंड इन 2009 फाइनली देन आई डिसाइडेड कि यार ये होगा नहीं अपने से, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत छोटा हिस्सा अपन बन गए हैं. तो आई क्विट सिटी. आई केम बैक टू पुणे. 2009 to 11 was the period when I was practicing as a CA in a CA firm. I was a practicing CA, and during morning and evening I used to teach. So I taught financial management at Ujjwal Academy, if you know, in Pune. So I was there for 2 years. I took 4 batches of crash courses on finance. All this happened, and from 2011 to 14, I was working under an ex-banker. I learned project finance. From 14, started on my own. We were into debt syndication, wherein we used to help businesses raise money directly from banks and financial institutions. And we used to advise them on how to raise money, how to use money, how to repay money, and how to structure these loans. इन 2017 ऐसा हो गया था कि यार पैसे दिलाने से अच्छा खुद ही पैसे देते हैं. और फिर हमने हमारी खुद की एनबीएफसी बना दी, प्रचय कैपिटल. सो फ्रॉम अरेंजर ऑफ मनी टू प्रोवाइडर ऑफ मनी वी पिवटेड. खुद की एनबीएफसी डाली 2017 में. फिर 2022 में फंड होता है, इक्विटी फंड, जो आप लोगों ने सुना रहेगा, जिसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं. तो वो लॉन्च किया. 2024 में डेट ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया. जैसे जीरो द इक्विटी ब्रोकर है, हम लोग के पास में डेट ब्रोकिंग का लाइसेंस है. और हमारा एक खुद का ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है, जो अभी इस महीने के एंड में लॉन्च होने वाला है, बॉन्ड स्मार्ट नाम से. ऑलरेडी हमने सोशल मीडिया कैंपेन उसका लॉन्च कर दिया है. तो इस तरीके से रहा. फिर 2025 में हम लोगों ने कंपनी का आईपीओ किया, पब्लिक इशू ऑफ बॉन्ड्स. इंडिया में टोटल 19 लाख कंपनीज के पास में कंपनीज है टोटल इंडिया में. इसमें से सिर्फ 650 कंपनीज ने पब्लिक इशू किया है बॉन्ड्स का. तो बहुत एक रेयर क्लब है. और ये पूरा जो हमने मैनेजमेंट किया इसका, फंड रेजिंग से लेके, बुक बिल्डिंग से लेके, लीड मैनेजमेंट, ये पूरा हमने इन हाउस किया है. तो इस तरीके की पूरी जर्नी रही है. मैंने मेरा डिसीजन फाइनेंस में शिफ्ट होने का लिया था जब मैं सीए फाइनल की प्रिपरेशन लीव पे गया था. 2 साल आर्टिकलशिप कर ली थी. ट्रेडिशनल एरियाज में बहुत काम कर लिया था, ऑडिट्स, टैक्सेशन, आईएफआरएस, ये सब चीजों पे मैंने बहुत काम किया हुआ था. फिर जब मैं फाइनल की छुट्टियों में प्रिपरेशन लीव पे गया तो मैंने फाइनेंस पढ़ना चालू किया. और मेरे को ऐसा लगना शुरू हुआ कि यार इसके कॉन्सेप्ट्स कितने रियल लाइफ है. मतलब आप बाकी सब जो चीजें पढ़ते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि रियल लाइफ दुनिया में इनका इतना इम्पैक्ट नहीं है या इतना रेलेवेंस नहीं है. बट फाइनेंस मेरे को ऐसा फील लगा कि जो आप रियल वर्ल्ड में फील कर सकते हो. हम लोगों ने अकाउंटिंग में सीखा हुआ है कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. तो हम लोग सिर्फ उसी चीज की अकाउंटिंग कर पाते जिसको हम लोग पैसों में गिन पाते हैं. और अगर आप देखोगे कि पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है. समझ लीजिए आप हॉस्पिटल चला रहे हैं जहां पर आप पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. तो ट्रीटमेंट के बदले में आप उनको क्या क्या लेते हैं? उनसे पैसे लेते हैं, मनी लेते हैं. आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करके समझ लीजिए फर्नीचर बना रहे हैं, पर फर्नीचर जब आप बेचते हैं तो दूसरी तरफ से आप पैसा लेते हैं. तो पैसा ऐसा चीज है जो हर, क्या कहते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में एक लेग होता है. और फाइनेंस ऐसी फील्ड है जो हमको इस पैसे को समझने में हेल्प करती है. तो वहां पर हम लोग हैं. फिर तो इस वजह से मैंने फाइनेंस पर्सनली चूज किया. और जैसे ही मैं इसके बाद में आया, अपनी फाइनल एग्जामिनेशन के बाद में, तो मैंने जाके मेरे जो प्रिंसिपल थे सीए में, उनको बोल दिया कि सर मैंने डिसाइड किया अब मैं सिर्फ फाइनेंस का ही काम करूंगा, मेरे को ऑडिट टैक्सेशन नहीं करना है. तब फर्म में कोई फाइनेंस का काम नहीं था. तो उन्होंने बोला जाके बैठ जाओ, जब आएगा तब काम मिलेगा. आई वॉज बेंच्ड फॉर 2 वीक्स, कोई काम नहीं था. एंड फिर फॉर्चुनेटली काम आ गया फाइनेंस का. मैंने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, ये सब चीजें सीखी. उसके बाद में मैंने लाइफ में कभी कोई और दूसरा काम किया नहीं है, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट से इतना प्यार हो गया. मैंने डिग्रियां इसमें ली है. मैंने सीएफए लेवल 1 लेवल 2 क्लियर किया है. सीएफपी की डिग्री ली. मैंने पढ़ाया भी फाइनेंस. तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. और जब आप इसकी चीजों को अच्छे से समझते हैं तो आपको एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है कि दुनिया में कौन सी चीज कैसे मूव होती है.
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर है। अभी आपके लिए ये डिसीजन इस समय क्रिटिकल क्यों है? क्या होता है कि हमारे सीए डिग्री की जो वैल्यू है, वो वैल्यू सिर्फ करिकुलम से नहीं है। हमारा करिकुलम बहुत वास्ट है, हमारी एग्जाम्स बहुत टफ है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, बट इसकी वजह से सीए डिग्री की वैल्यू नहीं होती है। ये जो सीए इंस्टीट्यूट ने एक मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड रखा हुआ है, जिसमें जिसको आप लोग आर्टिकलशिप कहते हैं, ये पीरियड में आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको स्किल देता है। दो पार्ट होते हैं, नॉलेज और स्किल। नॉलेज आपको किताबों को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के, एग्जाम्स क्लियर करके शायद मिल जाएगा, पर ये नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज नॉलेज तब काम में आता है जब आपके पास में स्किल है कि इस नॉलेज को मैं कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकूं, और ये आता है सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से। अनफॉर्चुनेटली हमारे मैक्सिमम जो प्रोफेशनल्स है, ये ऑडिट और टैक्सेशन वाले फील्ड में काम करते हैं। मेरे को कुछ मतलब मेरा कोई उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बट मेरा पर्सनल फीलिंग फाइनेंस के बारे में क्या है कि आप पॉजिटिवली जाके चीजें शेप कर सकते हो, रादर देन पोस्टमार्टम उसके ऊपर एक्ट करने की जगह। तो जब आप फाइनेंस में रहते हैं, आप जब ये डिसीजन लेते हैं कि किस तरफ फाइनेंस मूव होना चाहिए, तो उस तरफ ग्रोथ मूव होती है और उस तरफ डेवलपमेंट मूव होता है। तो उस तरीके से आप एक्चुअली सोसाइटी को शेप कर सकते हैं। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स इतने डेवलप नहीं है। हम लोग अभी भी बहुत पीछे है। मेरे को लगता है कि क्या कहते हैं, इस चीज में काफी डेवलपमेंट्स आगे होने वाली है। यस, टेक्नोलॉजिकल जो फिनटेक वाली इंडस्ट्री है हमारी, वो बहुत आगे चले गई है, पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट, प्राइवेट क्रेडिट वाली फील्ड है, ये अभी भी काफी पीछे है और काफी स्कोप है क्या कहते हैं इसमें आगे बढ़ने का। अगर आप फाइनेंस में करियर चूज करते हैं तो आप बैंकिंग में काम कर सकते हैं, आप सिक्योरिटीज मार्केट में काम कर सकते हैं, आप बिजनेस फाइनेंस में काम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। तो बहुत अलग फील्ड है, और क्योंकि बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वी नो फॉर श्योर कि देर आर वेरी वेरी फ्यू companies out in the market who will actively try and attract talent, try and groom talent। एंड इसमें हमारा पर्सनल क्या कहते हैं जो मोटिव है, वो ये है कि यार फाइनेंस का नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, और तब जाके हमको जो डेवलपमेंट चाहिए कंट्री के अंदर, वो हो सकती है। सो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू। जो आपका करिकुलम अभी नया वाला करिकुलम बना है, जिसके अंदर आपको एग्जाम के बाद में 2 साल प्योर अनडिवाइडेड अटेंशन देने का क्या कहते हैं टाइम मिलता है आर्टिकलशिप पे। तो कुछ लोग होते हैं जो तुरंत सेकेंड लेवल निकलने के बाद में फाइनल की सोचना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डिग्री ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिलीव मी, मैं जब तक सीए कर रहा था, मेरे भी दिमाग में ये मिथ था कि सीए बन जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। जिस दिन सीए बना, उस दिन आसपास देखा, हर जगह हर कोई सीए ही दिखा। तो आप डिग्री तो एक बार का अचीव कर लोगे, शायद आपको फर्स्ट जॉब में भी हेल्प हो जाएगी, बट अगर आपको रियल नॉलेज है, रियल स्किल्स है, एंड आपको सीखना आता है कि यार मैं काम कैसे सीखता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड कल्चर है, जहां पर रेगुलर बेसिस पे लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटी। तो आप काम कैसे करते हो भी सीखते हो, नॉलेज कैसे अक्वायर करते हो वो भी सीखते हो। ये स्किल्स आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प होती है, एंड इनिशियल ईयर्स में आपकी हैबिट्स राइट फॉर्म होती है। मेरे को मालूम है कि जो आर्टिकल्स थे उन्होंने बहुत क्या कहते हैं ग्लोरीफाइड पिक्चर पेंट किया हुआ है कि हाँ हम लोग मस्ती करते हैं। मस्ती हमारा एक एस्पेक्ट है, पर हम लोग बहुत सीरियस है अपने काम में, हम लोग हमारे काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप जिस टाइप की ग्रोथ देख रहे हैं, जिस टाइप का हमारा बिजनेस एक्सपेंशन देख रहे हैं, वो सीरियस काम के बगैर नहीं होता है। तो वी आर वेरी फोकस्ड इन आवर वर्क, बट वी वांट टू गेमिफाई वर्क, वी डोंट वांट इट टू बी बोरिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप सैटरडेज और संडेज के लिए वेट कर रहे हो, एवरी डे शुड बी फन। सो वी हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ वर्किंग कल्चर। And in terms of, I'll try and give you some background about what we are trying to do at Prachay. I will break it into why and how and what. So basically, our why is we want to contribute to the economic progress of the country. We want to make India the biggest economy in the world by 2047. And we feel that, our contribution in that would be by helping businesses get more access to capital. हमारे यहाँ पर बहुत टैलेंटेड प्रमोटर्स है, बहुत हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है,
पर इनको जो पैसा मिलता है वो पैसा उतना फ्रीली नहीं मिल पाता है जितना फ्रीली शायद आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड में पैसा मूव हो गया है। रियल वर्ल्ड में पैसा नहीं मूव हुआ है। तो हम लोग ये मिड साइज बिजनेसेस जो है, जो कि न कि बहुत छोटे हैं न कि बहुत बड़े हैं, इनके साथ में हम लोग कोलैबोरेट करते हैं एज अ फाइनेंस पार्टनर। वी गिव देम मनी व्हेन दे रिक्वायर मनी। तो हमारे यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आप रहेंगे, क्रेडिट डिपार्टमेंट, उनका बेसिक रोल रहता है कि अगर कोई बिजनेस हमारे पास में बिजनेस की प्रॉब्लम लेके आता है, तो हमको समझनी होती है कि इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये पैसा किस तरीके से यूज करेगा, और उससे किस तरीके के काम होंगे कि वहां से कैश फ्लोज डेवलप होंगे और अपना पैसा वापस होगा। तो एवरी केस दैट यू वर्क ऑन इज बेसिकली अ फाइनेंशियल केस स्टडी, जहां पर रियल लाइफ बिजनेसेस को आप समझते हो। यू आर अ पार्ट ऑफ डिस्कशन विद द बिजनेसमैन, द प्रमोटर्स। डायरेक्टली सीईओ लेवल होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो ऑफिस में आते हैं, जो हमको बताते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है। उसके बाद में एज ए क्रेडिट एनालिस्ट आपको इस चीज को डॉक्यूमेंट करना होता है। हर एक प्रपोजल के पीछे रिसर्च होती है, केवाईसी की चेक्स होती है, सीबिल की चेक्स होती है, प्रपोजल नोट बनाना होता है। ये प्रपोजल नोट फाइनली आईसी के पास में, इन्वेस्टमेंट कमिटी के पास में जाता है, और फिर इस क्लाइंट को या इस केस पे पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, वो डिसाइड होता है। सो दैट इज द रोल दैट यू विल प्ले। तो हमारा इच्छा है कि भाई जो बिजनेसेस है, इनको हम लोग ज्यादा आसानी से पैसे प्रोवाइड कर सके। और इसमें हमारा बेसिक फोकस जो है वो है इंडिया के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर। अ, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, जैसे हमारा इक्विटी होता है जब हम लोग कंपनी में ओनरशिप लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग जब बॉन्ड्स के फॉर्मेट में पैसा देते हैं बिजनेसेस को, तो हम बिजनेसेस के लेंडर बन जाते हैं। तो ये मार्केट बाहर के देशों में इक्विटी का डबल होता है, और हमारे यहाँ पे 1/10 है। तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसको डेवलप करने का। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन डेट प्लेटफॉर्म है, एआई डेट, एआईएफ है, एनबीएफसी है, जिससे कि हम लोग इस मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। तो बाय हमारा हो गया कि भाई हम क्या काम करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बिजनेसेस को ज्यादा पैसा मिलेगा तो बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करेंगी। जब बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करेंगी तो ज्यादा जॉब्स जनरेट होएगी, जीडीपी में ग्रोथ होएगा, टैक्सेस में ग्रोथ होएगा। सो दैट वुड बी आवर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड व्हेन वी आर वर्किंग। Why I'm saying you this is, when you're joining any organization, it's not just what you're giving and what you're getting from the company. It is also important to know what is the impact of your work. हर चीज पैसे में नहीं होती है। कभी कभी हम लोग जो काम करते हो ज्यादा बड़ा होता है। तो दिस इज आर वाई, and how we do it is, we are extremely proud of ourselves as being expert in business finance. हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास में कंबाइंड एक्सपर्टीज है, जहां पर हम लोग बिजनेसेस के बारे में समझ पाते हैं, बिजनेसेस के रियल लाइफ चैलेंजेस को समझ पाते हैं, कितना मुश्किल है इंडिया में बिजनेस करना, और क्या क्या तकलीफें आती है, और किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम्स को पैसे से सॉल्व कर सकते हैं। हम बिजनेस फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं। एंड दूसरा, हम लोग बैंकिंग के एक्सपर्ट्स है। हम लोग को ये फाइनेंस के एक्सपर्ट्स है, जहां पर हमको ये समझ में आता है किस तरीके से पैसा दिया जाता है और तरीके से पैसा यूज किया जाता है। तो दैट इज हाउ, क्या कहते हैं, आर हाउ वी वर्क वेरी सीरियसली, वी आर वेरी सीरियस इन आवर वर्क, बट व्हेन इट कम्स टू फन वी आर इक्वली एक्साइटेड ओवर देयर। वी ट्राई टू हैव अ वेरी एंगेजिंग वर्कफोर्स। एवरीथिंग इज डेमोक्रेटिक। कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ द, जैसे आपको अभी भी आपने सुना होगा कि इवन जूनियर लेवल्स के ऊपर से भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो पूरे लर्निंग इनिशिएटिव्स भी आप ही ड्राइव करते हो, पूरे एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स भी आप ही ड्राइव करते हो, कौन सा फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए ये भी आप ही डिसाइड करते हो। एंड लर्निंग में क्या क्या हमने करिकुलम रखना चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए, ये भी पूरा टीम ही डिसाइड करती है। देर आर कंटिन्यूअस वोटिंग्स, क्वार्टरली हम लोग वोटिंग्स करते हैं, पोल्स करते हैं, आपका फीलर लेने की कोशिश करते हैं। जैसे सैटरडे टाउन हॉल के बारे में बताया, वहां पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, लीडरशिप के बारे में ओपनली बात करते हैं। सो हमारा क्या कहते हैं इंटेंशन ये है कि हम लोग आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या कहते हैं पार्टनर बने। होलिस्टिक डेवलपमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो नॉलेज एंड टेक्निकल स्टफ इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। आपकी क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ कैसी है, हम लोग उसका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। फिजिकली हम आपको ज्यादा एक्टिव होने के लिए प्रमोट करते हैं। हमारे पास में फिटनेस चैलेंजेस हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं टीम को।
फिर स्पिरिचुअली क्या कहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, सदगुरु, इस टाइप के कुछ इवेंट्स कर सके। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जहां पर आप 2 साल के लिए एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि लर्निंग क्या चीज होती है। ऑफ कोर्स मैं आपको जब बोल रहा हूँ तो आपको पहले ये डिस्क्लेमर दे दूंगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। जब आपको इतना ज्यादा दिया जाता है तो उतना ही ज्यादा एक्सपेक्ट भी किया जाता है। आज 1 साल के बाद में मोस्ट ऑफ आर आर्टिकल्स आर प्रिपेयरिंग प्रपोजल्स, दैट डिसबर्सिंग ऑन अर्जेंट टाइमलाइंस, दे आर मैनेजिंग क्या कहते हैं टाइमलाइंस विद स्ट्रेस ऑल्सो एंड विद फन ऑल्सो। So that kind of workplace it is. I think I am done with my side of क्या कहते हैं presentation. Anuradha, if you can throw me some questions which I can answer. तुम इस पे डालोगे ग्रुप पे? I'll answer. अच्छा तुम डाल दिया. Okay. दोस्तों, the first question that is there is, will we gain exposure in overall departments or do we have to stick to one departments only? दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं जब बोल रहा था कि पूरे प्रोफेशनल्स हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर अराउंड अभी की टीम में 15 लोग सीए बैकग्राउंड से है, 12 लोग कंपनी सेक्रेटरी बैकग्राउंड से है, एंड अराउंड 6-7 लोग लॉ बैकग्राउंड से है। आप किस पॉइंट पे ज्वाइन करते हो कंपनी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको आपकी डिग्रियों से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। हम आपके नॉलेज, स्किल, आपकी एप्टीट्यूड को जज करते हैं। हमारे यहाँ पर एक कंपनी सेक्रेटरी है जो आज मार्केटिंग टीम में काम कर रही है, मीडिया टीम में काम कर रही है और कंटेंट फाइनलाइजेशन कर रही है। हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ लॉयर्स है जो आज टेक डेवलपमेंट देख रहे हैं, डायरेक्टली टेक वेंडर से बात करके हमारे एप्स डेवलप कर पा रहे हैं। क्रॉस डिपार्टमेंटल डेफिनेटली मूवमेंट होएगा, बट जो आपका पहला 2 साल रहेगा आर्टिकलशिप का, ये बहुत छोटा पीरियड है आपको एक्सपोजर देने के लिए क्रेडिट में ही। तो प्रिडोमिनेंटली क्रेडिट में आप पहले साल काम करते हो और फिर नेक्स्ट ईयर जिनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है उनको हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में मूव करते हैं, जहां पर वो कुछ कस्टमर्स को एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट हैंडल करते हैं। तो आपके 2 साल के अंदर आपका एक्सपोजर क्रेडिट डिपार्टमेंट में ही रहेगा, बट यू कैन बी पार्ट ऑफ मेनी कमिटीज। देर आर क्रॉस क्या कहते हैं फंक्शनल प्रोजेक्ट्स विच आर देयर। जैसे हमारा जब आईपीओ होता है तो हमारी सीए की टीम रहती है, क्रेडिट की टीम रहती है, कंप्लायंस की टीम रहती है, मीडिया की टीम रहती है, और सब मिलके सेल्स की टीम रहती है और सब मिलके काम करते हैं। तो द एक्सपोजर इज ऑलवेज देयर क्रॉस फंक्शनल, एंड वी क्या कहते हैं encourage you to take various responsibilities. Second question that we are getting is what kind of live projects will we work on? जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग बिजनेस फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं। तो जब भी कोई बिजनेसमैन हमारे पास में आता है कि यार मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपको पैसे की जरूरत क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या अपने आप प्रोजेक्ट क्या कहते हैं डालना चाहते हो, या कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है जो आप सर्विस करना चाहते हो जिसमें आपको तकलीफ हो रही है और आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास में अलग अलग क्या कहते हैं तरीके हैं, वर्टिकल्स है जहां से हम क्लाइंट को पैसा दिला सकते हैं। हम ये देखते हैं कि इसको किस टाइप का पैसा चाहिए, उस ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करते हैं कि किस टर्म्स पे पैसा देना चाहिए, क्या सिक्योरिटी लेनी चाहिए, रिपेमेंट पीरियड क्या देना चाहिए। फिर ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस आपको ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना होता है कि जब हमने लोन दिया था तब क्या सोचा था और अभी क्या चल रहा है, और इंश्योर कराना है कि पैसा वापस कंपनी को टाइम से आ जाए या इन्वेस्टर को टाइम से आ जाए। तो इसमें एज अ क्रेडिट डिपार्टमेंट आप डिसाइड करते हो कि इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सिक्योरिटी इनफ है कि नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा प्रपोजल है कि नहीं है। तो क्रेडिट एनालिस्ट बेसिकली क्रेडिट मैनेजर के नीचे वर्क करता है। एक क्रेडिट मैनेजर के पास में 2 से 4 क्रेडिट एनालिस्ट रहते हैं। हर एक क्रेडिट एनालिस्ट एक सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर वर्क करता है, टीम रहती है 2 की। तो इस तरीके से पूरा वर्क कल्चर है। क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट हेड को फिर प्रपोजल सबमिट करता है और फिर क्रेडिट हेड इन्वेस्टमेंट कमेटी को प्रपोजल सबमिट करती है। इस प्रोसेस में पूरा आप इन्वॉल्व रहते हो। आप हर एक एनालिस्ट की ये ट्रांजैक्शन ओन्ड रहती है, यानी वो ओन करता है इस ट्रांजैक्शन को। ही इज द पर्सन हु विल रन द ट्रांजैक्शन, ही इज द पर्सन हु विल इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड वेल, information is analyzed well, and the funds are disbursed on time, and the funds return to the company on time. Transfer cases allowed on very exceptional basis because जैसा मैंने बताया कि बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें पहला 1 महीना तो हम आपको लिटरली क्लासरूम टीचिंग करवाते हैं,
उसके बाद में आगे के 2 महीने के अंदर, मतलब फर्स्ट 90 डेज के अंदर हम आपको धीरे धीरे अंडर ऑब्जर्वेशन की, बस आप ऑब्जर्व करके सीखते रहो, वो सिखाते हैं। फिर आपको कोई काम देना चालू करते हैं। तो अगर हमारे पास में 2 साल का भी विजिबिलिटी नहीं रहा तो ये प्रोग्राम वर्क नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमको क्या कहते हैं लेना नहीं है, बट ये प्रोग्राम का एक पूरा प्लान्ड डेवलपमेंट है, जिससे हमको ऐसा लगता है कि बंदा 2 साल में फाइनेंस के वर्ल्ड में एटलीस्ट एंटर करने लायक प्रिपरेटरी स्टेज पे पहुंचता है, और हमको भी कुछ वैल्यू देता है 1 साल के बाद में। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट वी टीचिंग यू, दिस इज नॉट अ क्लासरूम। लेट मी बी वेरी क्लियर, वर्क प्लेस लर्निंग इज वेरी डिफरेंट। इट इज वेर यू आर लर्निंग व्हेन यू आर पुटिंग अंडर प्रेशर। तो आपको काम करना पड़ता है, काम करके आप सीखते हो। तो इस चीज में हम लोग टिपिकली ट्रांसफर केसेस नहीं एंटरटेन करते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल बेसिस पे रहा, जहां पर जैसे कि मैं फाइनल कैंडिडेट सिलेक्शन के पहले मेरा कोई रोल नहीं रहता है, पूरी टीम क्या कहते हैं उसमें डिसीजन लेती है। देयर इज अ कल्चर कमिटी, देयर इज अ टेक्निकल कमिटी जो इवेलुएट करती है आपको, और फाइनल सिर्फ सिलेक्शन के लिए मेरे पास आता है। तो अगर कमिटी ने कभी रिकमेंड कर दिया ऑन एक्सेप्शनल बेसिस तो हम लोग एंटरटेन कर सकते हैं। व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड? तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप अपने काम में अच्छे हो, हमको आपका एटीट्यूड अच्छा लगता है, तो एक चीज तो फॉर श्योर है, और जो आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज हम लोग काफी ओपनली रिकॉग्नाइज करते हैं आपके कंट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहली चीज तो है कि आपके पास में अशोर्ड जॉब रहेगा प्रचय में। तो आउट ऑफ से अगर हमारे पास में 8 कैंडिडेट रहेंगे तो हमारी इच्छा रहती है कि उसमें से एटलीस्ट 3 से 4 कैंडिडेट्स हमारे पास में हर एक बैच में हमारे पास साथ में आगे काम करें। इनका करियर प्रोग्रेशन ऐसा होता है कि ये बाद में चल के सीए होने के बाद क्रेडिट मैनेजर बनते हैं। उसके बाद में क्रेडिट में भी ये मूव कर सकते हैं सीनियर लेवल्स के ऊपर, जहां पर इनको पोर्टफोलियो मैनेज करने का है। या फिर अगर इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो ये बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं। और बिजनेस डेवलपमेंट में जाने के बाद में आपका बेसिकली सेल्स वाले रोल में आप जाते हैं, तो आपका अर्निंग प्रोफाइल काफी चेंज हो जाता है। तो अंदर भी अपॉर्चुनिटी। एंड बेसिकली दूसरी चीज ये है कि अगर आप 2 साल प्रचय में ग्रिल हुए हो तो आपको मार्केट में कोई भी ऐसे ही उठा लेगा। बिकॉज हमारे यहाँ पर सरवाइव करना भी इतना इजी नहीं है। सीरियस वर्क, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप काफी कुछ चीजें चीजें सीखते हो तो आप मार्केट रेडी हो जाते हो। आपके पास में वैसे भी डुअल सर्टिफिकेशन है, आपके पास में कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपोजर है, आपको बेसिक लेवल के ऊपर फाइनेंस समझता है। हर एक कंपनी में एक सीएफओ का रोल होता है, तो हर एक कंपनी में आपके लिए रोल खुला रहेगा। आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप सिक्योरिटीज मार्केट में जा सकते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी में जा सकते हैं। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इससे खुलती है। हाँ, डू वी गेट टू नो अबाउट अदर डोमेन्स टू लाइक ऑडिट एंड टैक्सेशन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको ऑडिट टैक्सेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। ऑफ कोर्स हमारे पास में इन हाउस देयर आर मेनी कंपनीज जो ऑडिट में जाती है, टैक्सेशन में जाती है। उसमें भी हम लोग आर्टिकल्स लेते हैं, बट देन उनका करियर प्रोग्राम 2 साल के लिए वो रहता है। आप खाना कैसे बनाते हैं वो नहीं सीख पाएंगे, बट ऑफ कोर्स खाने में क्या डलना चाहिए, कैसा खाना अच्छा होता है वो आपको समझ में आएगा। तो फाइनेंस बेसिकली बुक बनने के बाद में का वर्क है, जहां पर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हो और बिजनेस में क्या चल रहा है वो समझते हो। तो इट्स द अदर वे राउंड। तो आई थिंक इट इज मोर रिवॉर्डिंग, बिकॉज आपको बुक्स में क्या देखना है अगर वो समझ में आ गया तो that is more valuable. What are the things that Prachay expects from candidates during interview process selection? Uh, तो let me be very honest. क्या कहते हैं, टेक्निकल नॉलेज इज वन एस्पेक्ट विच वी लुक एट, बट विच इज नॉट अ मेजर वन। हम लोग होलिस्टिक पर्सनालिटीज को ढूंढ रहे हैं, जिनके पर्सनालिटी के अंदर कम्युनिकेशन भी है, टीम प्लेइंग भी है, लर्निंग एटीट्यूड है, हंगर फॉर ग्रोथ है, सिंसियरिटी है। तो क्योंकि हमको लगता है कि हर एक बंदा जो हमारी टीम में आता है वो बहुत स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्पेशल है। तो हम लोग उस एंगल से देखते हैं कि बंदे के अंदर एक होलिस्टिक पर्सनालिटी हो, कम्युनिकेशन आए, टीम बिल्डिंग आए, टीम प्लेयर रहे, चैलेंजेस लेने वाला रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड का रहे, नेगेटिव एटीट्यूड का नहीं रहे कि सिर्फ ब्लेम डाल रहा है। तो कल्चर राउंड होता है जिसके जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको आपका एनालिसिस देखा जाता है, आपको ट्रांजैक्शंस दी जाती है और आपको प्रेजेंट करना होता है केसेस।
तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है वो देखा जाता है। आपके अंदर कितना हंगर है काम करने का, आगे बढ़ने का, वो देखा जाता है। आर यू इन्वॉल्व मोर ऑन डेट इशुएंसेस और इक्विटी रेजेस? वी आर मोर इन्वॉल्व ऑन द डेट साइड। जैसा मैंने बताया कि डेट का कैपिटल मार्केट बहुत छोटा है इंडिया का, तो हम लोग वहां पर कंट्रीब्यूट करने के लिए दे रहे हैं। हाउ मच एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इट इज एंटायरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, आपको जो बोलना है वही एरिया का पूरा काम है। आर द इंटरव्यू वर्चुअल और आई हैव टू कम टू पुणे? अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वर्चुअल इंटरव्यूज नहीं रखे हुए हैं, बट आई कैन अश्योर यू आप पुणे का ट्रैवल प्लान बनाइए। जो एक्सपीरियंस होएगा आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस का, वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जहां पर आप मल्टीपल राउंड से जाते हो। इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ इंटरव्यू कॉल, आई विल से दैट यू नो मेक अ प्लान टू पुणे, बिकॉज हम नहीं किसी बंदे को जज कर सकते कि ये हमारे लायक है बिना मिले। सिमिलरली आपने भी किसी कंपनी को जज नहीं करना चाहिए जब तक आप जाके देखते नहीं हो कि वर्क सेटअप क्या है। वी हैव अ ब्यूटीफुल ऑफिस, व्हेन you'll come to office you'll understand what kind of life we are living. तो वो पूरा प्रोसेस ही वर्क नहीं करता है अगर आप ऑफिस में नहीं आते हो, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज समबडी इन अ लिमिटेड टाइम। एंड आपके लिए इजी डिसीजन है, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, क्योंकि वो बंदा हमारे टीम का पार्ट बनता है, उसकी प्रॉब्लम्स भी हमारी प्रॉब्लम्स बनती है, टीम के डायनामिक्स इम्पैक्ट होते हैं, हमारा वर्क कल्चर इम्पैक्ट होता है। तो हम बिना देखे ये डिसीजन नहीं ले पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट आर द टाइमिंग्स? सो बेसिकली 9 a.m. to 6 p.m. is the timing, and you have plus minus 1 hour का leeway. If you want to come early, you can come early, leave early. If you want to come by 10, you can leave by 7, जिसके अंदर 1 hour का लंच ब्रेक रहता है। And first and third Saturday, mostly we don't work. First half we spend on learning, and second half we spend on engagement and integration activities. When will the interview process start? I think you should get, if not already informed, you should get a message or mail by Anuradha very soon on this. Will all the interview rounds be on the same day? Yes, all the interview rounds. I think, yeah, I think all the interview rounds. I don't know whether CEO round is there on the same day or not. बट टैलेंट राइज तो पूरा सेम डे पे आपका हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल राउंड, बट ऑल राउंड्स आर बैक टू बैक। 3 से 4 घंटे का शेड्यूल रहता है, जिसके अंदर इट स्टार्ट्स विद नो योर कंपनी, नो योर जॉब प्रोफाइल, एंड देन कल्चर राउंड, टेक्निकल राउंड। So yeah, I think I've answered most of your questions. Yeah, I will hand over. Anuradha, you can take it forward. Hope we get maximum candidates after this webinar. They have more clarity on the subject. Yes, thank you, sir. Thank you for your insights. I am sure that CA aspirants must have got clarity about their career in finance. So, guys, I have posted a link of a registration form. In case if you are remaining, you can fill that form. We will be considering our application and you will get a call from us. And for any queries, you can write us on hr@prache.com. You can follow us on LinkedIn, Instagram, Facebook, and YouTube. You can follow Prache Group, Life at Prache, OneSmart. For any queries, feel free to write on hr@prache.com. Thank you. See you all.